अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अबाउट द रिसेप्टर्स एंड द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। ठीक है, तो रिसेप्टर्स को हम डिफाइन करते हैं एज दीज आर द स्मॉल मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल or in the cell membrane and that are protein in nature and with which the drug molecule interacts and produces the pharmacological response। ठीक है, तो रिसेप्टर्स क्या है? ये प्रोटीन इन नेचर, ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन में या इनसाइड द साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में होता है और इसके साथ जो है ना ड्रग आके बाइंड करता है, इंटरेक्ट करता है और कन्फर्मेशनल चेंज होती है रिसेप्टर में, हमारे साथ रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, तो वेरियस इफेक्टर मैकेनिज्म and the receptors are responsible for the selectivity of the drug due to their specific structure। ठीक है, and for a drug to bind to the receptor it must be in complementary and structure to the receptors, and function of the receptor is to recognize the drug and response to endogenous ligand of the drug, and the receptors also determine the quantitative relationship between the amount of drug required to produce the desired pharmacological effect। अब हमारे साथ अल्ट्रेशन इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, तो हमारे साथ डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर भी होता है, अप रेगुलेशन भी होता है। डाउन रेगुलेशन मीन्स द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स and it occurs because of the prolonged use of the agonist, yeah, internalization of drug receptor complex, inactivation of the receptor, or destruction of the receptor. Upregulation of receptor. Upregulation means the increase in the number of receptors by the prolonged use of antagonist or by certain hormones like thyroid hormones, which increases the number of receptors in the muscle to the adrenaline or non-adrenaline। अब हम आ जाते हैं about the spare receptors। तो spare receptors जो है ना, these are the extra receptors that do not take part in pharmacological reaction। ठीक है, तो spare receptors को हम define करते हैं as the receptors which are unoccupied by the drug at its therapeutic dose। ठीक है, and these are not the hidden receptors, and when they are occupied they produces pharmacological response। spare receptors जो है ना, इसको हम extra receptors भी कहते हैं और normally हमारे साथ जो pharmacological reaction हो उसमें they do not take part। ठीक है, and these are the surplus receptor to those required for electing the normal pharmacological response। Like हमारे सब बॉडी में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है, about 90% are the spare receptors। लाइक लेट सपोज अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पेशेंट को हमने ड्रग दिया है, ठीक है, और उस ड्रग ने जो है ना जाके हमारे साथ 10% रिसेप्टर के साथ वो ड्रग बाइंड हो गया और उसने हमारे साथ मैक्सिमम इफेक्ट जो है ना प्रोड्यूस किया। तो जो 90% बॉडी में रिसेप्टर्स रह गए, ठीक है, they which do not take part in pharmacological reaction, तो वो रिसेप्टर्स हमारे साथ क्या है? These 90% receptors are the spare receptors, means that they do not take part in the pharmacological reaction। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि it preserves the economy of the neurotransmitters and the hormones। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ small amount of the neurotransmitter या हार्मोन रिक्वायर होते हैं for generating a pharmacological response or any effects। ठीक है, and it works through the G protein mediated amplification process। मतलब ये कहेगा एक लिगेंड या ड्रग आएगा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो वो ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है ना मल्टीपल जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन्स होते हैं उसकी स्मॉल कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है। अब हम आ जाते हैं कि अबाउट द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के, एक ड्रग है वो हमने ले लिया है तो वो जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, इंटरेक्ट करेगा और रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, तो वेरियस इफेक्टर मैकेनिज्म्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद द रिसेप्टर दे आर क्लासिफाइड एज एगोनिस्ट ड्रग्स और एंटागोनिस्ट ड्रग्स। एगोनिस्ट causes एक्टिवेशन, एंटागोनिस्ट causes इनहिबिशन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अबाउट द एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट आर द ड्रग्स which binds to the receptor molecule and activate it। ठीक है, and they may make a copy the endogenous compound and produces the action similar to it। एगोनिस्ट क्या करता है? आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, उसको एक्टिवेट करता है and it may make the copy of endogenous compound। ठीक है, और पोलेगोनिस्ट ये है कि it is a drug that is capable of fully activating the effector system when bind to the receptors। ठीक है, तो ये हमारे साथ पोलेगोनिस्ट क्या करता है? जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अबाउट द partial agonist। तो partial agonist is a drug which binds to the receptor and activated but produces partial efficacy at the receptor relative to a full agonist। ठीक है, जो partial agonist होता है वो हमारे साथ partial response प्रोड्यूस करता है, ठीक है, as compared to the full agonist, and it produces sub-maximal response as compared to the full agonist। लेट सपोज अगर हमारे साथ पोल एगोनिस्ट जो है 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है तो पार्शियल कितना प्रोड्यूस करेगा? इसका हाफ प्रोड्यूस करेगा, 50%। ठीक है, एंड द पार्शियल एगोनिस्ट एक्ट बोथ एज एन एगोनिस्ट एंड आल्सो एन एंटागोनिस्ट। लाइक लेट सपोज अगर हम ले लेते हैं the partial agonist in the absence of in the absence of polygonist it acts as an agonist, but
attack as an antagonist in the presence of pull agonist. तो इसको हम तो एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर लें। लेट सपोज हमारे साथ 4 नंबर ऑफ रिसेप्टर्स है, तो अगर हमारे साथ फुल एगोनिस्ट नहीं होगा तो पार्शियल एगोनिस्ट सारे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, तो हम कहते हैं कि पार्शियल एगोनिस्ट एक एज एन एगोनिस्ट। लेकिन अगर हमारे साथ पार्शियल एगोनिस्ट और फुल एगोनिस्ट दोनों हो, तो पार्शियल एगोनिस्ट तो हमारे साथ मैक्सिमम रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, लेकिन फुल एगोनिस्ट मैक्सिमम रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, पार्शियल हमारे साथ कम रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा। तो हम कहते हैं कि जो फुल एगोनिस्ट की एक्टिविटी है वो पार्शियल एगोनिस्ट ने कम की है। ठीक है, तो इसी तरह हम कहते हैं कि द पार्शियल agonist act as an antagonist in the presence of the pull agonist because it reduces the activity of the pull agonist. Like example ले लेते हैं pendolol which act as an agonist, ठीक है। लेकिन in the presence of isoproterenol which is a pull agonist, the activity of the pendolol is reduced, ठीक है। तो in such situation the pendolol act as a antagonist in the presence of isoproterenol which is a pull agonist. अब हम आ जाते हैं about the inverse agonist. Inverse agonist जो है ना, इसको हम define करते हैं the drugs that bind to the receptor as an agonist but produces the response opposite to that of agonist. हमारे साथ बॉडी में कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसमें से बेसल एक्टिविटी होती है, ठीक है। मतलब अगर लेट्स सपोज हमारे साथ ये रिसेप्टर है, तो इस नॉर्मली इसमें हमारे साथ जो गाबा रिसेप्टर है, कैल्शियम आयन क्लोराइड आयन अंदर आते हैं, ये हाइपरपोलराइजेशन करता है नॉर्मल स्टेट में। और इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब इसमें नॉर्मल ये एक्टिविटी होती है, लेकिन अगर हम इनवर्स एगोनिस्ट देते हैं, ठीक है, तो इसमें से जो इसकी कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो भी इसकी इनहेबिट होती है। तो इनवर्स एगोनिस्ट क्या है, दे इनहेबिट the intrinsic property or constitutive activity of the receptors, ठीक है, and it convert the active receptors into inactive state and stabilizes the receptor and the inactive form, ठीक है। तो इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, उसकी जो बेसल एक्टिविटी होती है उसको भी इनहेबिट करता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो इनवर्स एगोनिस्ट है उसकी एफिकेसी हमारे साथ क्या है, नेगेटिव है, बीनीथ द बेस लाइन आती है। और पार्शियल और फुल एगोनिस्ट की एक्टिविटी अबाउट द बेस लाइन है, मतलब इसकी एफिकेसी हमारे साथ क्या है, पॉजिटिव है। और एंटागोनिस्ट की एफिकेसी हमारे साथ जीरो होती है, ठीक है। तो इनवर्स एगोनिस्ट जो है ना हमारे साथ क्या करते हैं, इट इनहिबिट द बेसल एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर्स एंड इट inactivate the receptors and stabilizes it in the inactive form. अगर हम GABA रिसेप्टर की बात करें तो नॉर्मली जो है ना हमारे साथ क्या होता है कि क्लोराइड आयन अंदर आता है, हाइपरपोलराइजेशन काज करता है, लेकिन जब बेंजोडाइज़ेपिन या बारबिटूरेट्स हम लेते हैं तो वो GABA रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, वो इसको एक्टिवेट करता है और मोर क्लोराइड आयन अंदर आते हैं और हाइपरपोलराइजेशन इफेक्ट हमारे साथ एम्पलीफाई होता है। लेकिन जब हम बीटा कार्बोलिन देते हैं तो बीटा कार्बोलिन क्या करता है, वो हमारे साथ GABA रिसेप्टर को कम्प्लीटली ब्लॉक करता है और क्लोराइड आयन बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम कहते हैं कि बीटा कार्बोलिन इज द inverse agonist of the GABA receptors, and the beta-carbolin inhibit the constitutive property or the basal activity of the GABA receptors. अब हम आ जाते हैं about the antagonist. तो antagonist को define करते हैं as these are the drugs which binds to the receptors and inhibit it, and it opposes the effects of the endogenous ligands, and the antagonist has zero efficacy. मतलब एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स है जो कि रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं एंड इट इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ द एंडोजेनस कंपाउंड टू द रिसेप्टर्स, और वो उस रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं, तो ये एंटागोनिस्ट है। अब इसके टाइप्स के बारे में आ जाते हैं, तो इसके टाइप्स में सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट विच इंक्लूड कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, द फिजिकल एंटागोनिस्ट, केमिकल एंटागोनिस्ट एंड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। सबसे पहले हमारे साथ है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। These are the drugs which occupies the receptors without activating it and prevent the binding of the endogenous agonist. And the antagonist has got some affinity, means it binds to a receptor, but no efficacy, means it do not produces any response, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट आके रिसेप्टर पे बाइंड करता है, मतलब इसकी एफिनिटी है विद द रिसेप्टर, लेकिन एफिकेसी इसकी नहीं है, मतलब ये रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता, ठीक है। The pharmacological antagonists include competitive and the non-competitive antagonist. तो competitive antagonist कौन से drugs है? These are the drugs which competes by binding to the receptors with the endogenous compound and they bind with the receptor molecule reversibly, ठीक है। And the binding to the receptor depends on the concentration of the agonist and the endogenous compounds. कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में हमारे साथ कंपटीशन होता है बिटवीन द एंडोजिनस कंपाउंड एंड द एंटागोनिस्ट, ठीक है। और इसमें जो बाइंडिंग होती है वो रिवर्सिबल होती है और ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। अगर हमारे साथ एंटागोनिस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ये हमारे साथ रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा, लेकिन अगर हमारे साथ जो एंडोजिनस कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वो हमारे साथ रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, लाइक नेलेक्सोन विच इज़ अ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ द मॉर्फिन एंड इट इज़ यूज्ड इन ओपिएट पॉइजनिंग, ठीक है।
इस तरह हमारे साथ जो नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, इसमें हमारे साथ कंपटीशन नहीं होती, ठीक है। दीज आर द ड्रग्स which binds to the receptor irreversibly and they cannot be displaced even by the high concentration of the agonist, ठीक है। and the drug does not compete by the receptors। नॉन कम्पिटिटिव में ये होता है कि हमारे साथ जो ड्रग होता है वो आके रिसेप्टर पे बाइंड करता है इरिवर्सिबली, ठीक है। और हमारे साथ इसमें कंपटीशन नहीं होता और ये कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता। and the drug binding is irreversible, ठीक है। it is because of the formation of the strong covalent bond between the drug and the receptor molecule, ठीक है। and the duration of action is dependent on the rate of regenerations of the new receptor। तो नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में जो रिसेप्टर का एक्शन होता है वो डिपेंड करता है, या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ना हमारे साथ एंटागोनिस्ट का डिपेंड करता है न्यूली रिसेप्टर पे, ठीक है। कि हमारे साथ न्यू रिसेप्टर जो है ना कितने फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल के बारे में आ जाते हैं। इज़ द पेनॉक्सिबेंजामीन। पेनॉक्सिबेंजामीन क्या है? ये हमारे साथ इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है ऑफ द अल्फा रिसेप्टर। इट इज़ यूज्ड इन द प्यूकोमोसाइटोमा टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन। पेनॉक्सिबेंजामीन जो है ना जाके हमारे साथ अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड करता है, तो हमारे साथ जो एड्रेनलिन होगा, नॉन एड्रेनलिन हो वो बाइंड नहीं कर सकता, तो हमारे साथ ये हाइपरटेंशन के कंट्रोल में यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अबाउट द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट एंटागोनाइजेस द इफेक्ट ऑफ एन एगोनिस्ट by binding to the dependent receptors, but they produces effects opposite to that of the agonist। एग्जाम्पल किताबों में आते हैं, इससे आपको फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट की समझ आएंगी, क्योंकि ये जो है ना हमारे साथ एंटागोनाइज करता है एक एगोनिस्ट की एक्टिविटी को, और ये हमारे साथ जो एंटागोनिस्ट होता है डिपेंडेंट रिसेप्टर पे बाइंड करता है, ठीक है। तो लाइक लेट सपोज हम लेते हैं एक पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक है, तो जो हमारे साथ हिस्टामीन होता है उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वो क्या करते हैं? भांगो कंस्ट्रक्शन करता है। तो इसको काउंटरैक्ट करने के लिए हम क्या देते हैं? एड्रेनलिन देते हैं, ठीक है। और एड्रेनलिन जाके हमारे साथ कौन से रिसेप्टर्स पे? अल्फा रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। हिस्टामीन जो है ना हिस्टामीन रिसेप्टर पे बाइंड करता है, भांगो कंस्ट्रक्शन करता है। एड्रेनलिन आके हमारे साथ अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ये हमारे साथ क्या करेगा? भांगो डायलेशन करेगा, और हमारे साथ जो इफेक्ट होता है उसको काउंटरैक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ के फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है। द एड्रेनलिन एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, ठीक है। and it neutralizes the action of the agonist, that is histamine, means that the adrenaline counteract the bronchoconstriction effect of the histamine by causing bronchodilation, ठीक है। अब हम आखिर में आ जाते हैं about the chemical antagonist। तो chemical antagonist is an antagonist which chemically react with the other endogenous agonist directly and inactivated, ठीक है। and it is less specific than pharmacological antagonist। and chemical antagonist में हमारे साथ जो है ना there is no binding occur to the receptor, and chemical antagonist it causes inactivation by either a chemical reaction, like हम लेते हैं antagonist which neutralizes the stomach acid by neutralization reaction, or it also causes inactivation by chemically binding like protamine which is positively charged, and it is an antagonist of the warfarin which is negatively charged. They combine with each other, so that is why we say the protamine sulfate is used to antagonize the effect of the warfarin and the warfarin toxicity। इसी तरह हमारे साथ physical antagonist भी है। फिजिकल एंटागोनिस्ट जो है ना दे absorb the drug on the surface, ठीक है, to prevent it from reaching its target site। लाइक हमारे साथ जो पॉइजनिंग केस होती है, तो उसमें क्या होता है? हम एक्टिवेटेड चारकोल दे देते हैं, ठीक है, और वो जाके स्टमक में पॉइजनिंग के साथ जो है ना एट द सरफेस इंटरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फिजिकल एंटागोनिस्ट कहते हैं, और इसमें कोई डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन।